Hello and welcome to I'm the Best Mom. I trust you all are keeping well and staying safe. I'm the Best Mom is committed to make your motherhood a joyful experience. I'm the Best Mom brings you collective knowledge and right information from specialized doctors and experts. How a doctor thinks and how you think, and we always carry our butterfly effect. Every life is precious. Cover Page Cover Story comes with the answers. Today we are going to have a very interesting topic to discuss on. I would request all of you to participate or have your question, please put forward into Q&A section. We'll take it at maybe towards the end of the session if it is not covered. Now, cancer is one of the most dangerous disease which we have been seeing may occur at any age. Any individual can get it, affect any part of our body. It begins with a genetic change in a single cells that then grows into tumor and harm other part of the body. Sometimes it leads to death if it left untreated. So today we are going to learn quite a lot of that. And I'm so happy to receive Dr. Manas Kalra today. Welcome to you, Dr. Manas Kalra. Dr. Manas is a pediatric hematologist and oncologist. He is an alumni from KMC Mangalore, Manipal University. He did his MBBS and MD from KMC Mangalore, then was working as an assistant professor in pediatrics at Manipal. He did his fellowship of National Board in Pediatric Hematology, Oncology from Gangaram Hospital, and then went to Children's Hospital at Westmead, Sydney, to do a 3-year specialized program with childhood cancer like leukemia, lymphoma, brain tumor, neuroblastoma, bone and soft tissue tumors. He also has expertise in managing blood disorders like anemia, thalassemia, aplastic anemia, ITP, hemophilia, and other bleeding disorders, etc. He was consultant at Indraprastha Apollo Hospital for last 5 years and moved to Sir Gangaram Hospital to look after children with cancer and blood disorder. It's a pleasure to have you today with us, Dr. Manas. And I request Dr. Anuj Rastogi sir, today is a milestone episode, 30th episode of Cover Page Cover Story. Big compliment to you, Dr. Anuj. Thank you, Deep. Thank you. First of all, today is this month is September month. This is Pediatric Cancer Awareness Month. This is Childhood Cancer Awareness Month. And what is cancer? Cancer, our body is made up of tissues, and tissues are made up of cells. In our body, only few cells start behaving abnormally, and they spread very fast and damage the surrounding cells, and this is known as cancer. So this is deal in a branch of oncology. So oncology is a branch where we diagnose, treat cancer, and pediatric oncology is branch of children which deal in the cancer. And doctor who is dealing with the pediatric cancer is pediatric oncologist. The earlier it was dealt by oncologist,
but now we have a separate branch by the we called as pediatric oncologist. So I welcome you, Dr. Manas, with this Thank you, background. sir. Thank you. So first of all, you tell me what has fascinated you to choose this branch in pediatrics, because this is time of subspecialty. Okay, so that is interesting. So how did I become a cancer specialist, and that too a cancer specialist of children? So I'll tell you this, Dr. Rastogi. So whenever anybody says to me कि आप cancer specialist हो, आप कैंसर का इलाज करते हो, वो भी बच्चों में, so they come with an expression की बड़े दुख वाला expression. So they start off with a face which is like, full of distress, full of tension. And how do you even do that? Already looking at sick children is not enough. Kya? Now that you want to look at sick children who have underlying diagnosis of cancer. So they have this distress on their face when they ask me this question. So I calm them down and I tell them a little story, and I'll tell that to you also. So when I was a med student, I was doing my MBBS. So you will remember from your MBBS days that you will have some seniors who you would always look upon to, those bright, shiny seniors who were the star seniors, and you would always aspire to become like that. So we had a few seniors, and I will not name that senior, but there was one senior who was very intelligent, very bright, very smart, and he almost knew answer to every question. So we aspired to become like him. And then one fine day during my MD pediatrics, I realized that he is now doing DM medical oncology. So I went to him with that distressed face, and I asked him, sir, you are the most, like the best postgraduate student I've ever seen, the best SR I've ever seen. You are the teacher of teachers, and you are always smiling, you're always happy. Why did you take up this branch of oncology, which is so depressing, which is just, all the time there is death and disease and sadness everywhere? Why did you take up this? He just answered in one sentence. He said, there should be someone to put smile on these faces also, So there should be somebody who can put smile on these faces of these patients who are going through hell. So you need a person who can put smile to their faces. So that one sentence made a huge difference in my life. And I thought that what is a doctor's role? A doctor's role is to put smile on the faces of people who are going through difficult times. I was doing pediatrics. I got an opportunity to work in pediatric oncology during my MD days for 8 months. And I just, loved the contact, in your pediatric cancer world, when somebody is your patient, he's your patient forever. So you associate with that family, you become a part of their family, the child's chacha, bua, tauji, nani, everybody, and you become a part, you become their dining table conversation. So I liked that connect. I liked meeting those people. I liked being a part of their family. And all these reasons, drove me to do pediatric oncology. And here I am in front of you talking about childhood cancers. Wonderful, wonderful. डॉक्टर मानस, आप ये बताइए, इन लास्ट 10 years में, जब से आप यहाँ इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपने सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में भी रहे, what is the difference in last 10 years of the survival and the diagnostic facilities in India? So I think, sir, it is changing with every day. Okay. It is changing with every day. Things are in the field of oncology, things are moving in a very, very rapid speed. And India is catching up to that. We have now a lot of diagnostics available with us. Making a diagnosis, doing specialized tests, it is not that difficult. So, if I say that there are 3 steps to make a diagnosis of cancer, first and second step are available at most of the places. Third step becomes a little difficult. We have now networked with people who have expertise in making the diagnosis, and we are able to contact those reference labs for any kind of a specialized investigation that we need.
So maybe that one lab is in, say, Bangalore, or maybe that one lab is, say, in Mumbai, or maybe that one lab is in Delhi. Now we have system where, those specialized investigations, which are like really the top class, even that are now available to most of us. So diagnostics has hugely improved. What other things have improved in the last 10 years is, I would say that the supportive care has improved tremendously. Access to good blood, access to antibiotics, access to antifungals, access to specialized drugs, that has kind of improved. The other big improvement is that there has been like almost a volcanic eruption of healthcare professionals who are trained in oncology, who have now come to India, whether they have trained abroad, whether they are training now in India. We have students whom we are training for the last so many years. And most of the big cities now have got pediatric oncologists, and that too not 1, 2, maybe 8, 10, 12 in all those big cities. I agree that in tier 2 cities, we do not have access to pediatric oncology, but I would say that in bigger cities we have. So because we have good diagnostics, we have good supportive care, we have doctors who can train, who can treat them, we have nursing education who can improve. So the outcomes are steadily improving with every day. So that is the plus aspect. There are, things where we are lagging behind, but I would say yes, tremendous differences happening from when I was a med student and we had so many patients who were dying because of cancer, to now where, most of the children with cancer are cured. वंडरफुल वंडरफुल। तो आपका एक मैसेज क्लियर है कि आज की तारीख में बच्चों का जो कैंसर है वो ट्रीटेबल है और उनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है सर जी, बिल्कुल। वंडरफुल वंडरफुल। सो डॉक्टर मानस, हाउ कॉमन इज चाइल्डहुड कैंसर इन आवर कंट्री? सो डॉक्टर अनुज, अगर हम ये देखें कि इंडिया के क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, तो मैं ये कहूंगा कि 50 to 60,000 बच्चों को हर साल इंडिया में कैंसर होता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख के साथ ये कहूंगा कि इस करीबन आधे बच्चे प्रॉपर बच्चों के कैंसर स्पेशलिस्ट के पास पहुंच भी नहीं पाते, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है, रेफरल सिस्टम की कमी है, बड़े सेंटर्स में बहुत भीड़ है, पैसे का अभाव है लोगों को, और कई लोग ये सोचते हैं कि बच्चों में तो कैंसर होता ही नहीं है, ये तो चीज ही गलत है। तो कई कारणों से बहुत बच्चे नहीं पहुंच पाते, मगर अगर एक रफ एस्टिमेट किया जाए तो कहते हैं कि करीबन 50-60 हजार बच्चों को हर साल भारत में, इंडिया में कैंसर की बीमारी होती है। ओके। और मेरे ख्याल से आपके साथ तो कॉस्ट वाला इशू नहीं है। मैंने देखा है आप बच्चों की बहुत हेल्प करते हैं, सर्टेन एनजीओ से हेल्प दिलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर फंड, सीएम फंड, उससे भी हेल्प दिला देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जिन डॉक्टर्स को बात मालूम नहीं है कि आप इतनी हेल्प करते हैं, तो शायद वो कह के छोड़ देते होंगे। बट तो अनुज सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं फंडिंग के लिए, बच्चों के कैंसर के इलाज के खर्चे के लिए। एक प्राइवेट सेंटर में बैठ के मैं नहीं कह सकता कि ये इलाज बहुत सस्ता है, हर जना करा सकता है, सस्ता नहीं है। अगर आप सरकारी अस्पताल में भी जा रहे हैं तो शायद वहां कोई टैक्स पेयर का पैसा तो लग ही रहा है इलाज के लिए, तो इलाज तो सस्ता नहीं है। ब्लड कैंसर जो सबसे कॉमन बीमारी है, उसका खर्चा भी करीबन 10-12 लाख रुपया है 2.5 साल का इलाज का खर्चा। 10 लाख मान लें अगर हम एवरेज, तो वो बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं। सरकारी फंडिंग, दूसरी फंडिंग, ये सब जगह की फंडिंग मिलाकर भी पेशेंट को अपनी जेब से कुछ खर्चा करना पड़ सकता है अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करता है, और करना ही पड़ता है। मैं ये नहीं कहूंगा नहीं करना पड़ता, करना ही पड़ता है। सरकारी हॉस्पिटल में भी कई जगहों पर दवाइयों की कमी हो सकती है, कोई टेस्ट की कमी हो सकती है जो बाहर से कराने पड़े। तो बहुत सारी एनजीओज हैं जो इन बच्चों की सहायता कर रही हैं, जिसकी वजह से ये टेस्ट वगैरह या दवाइयां वगैरह हो जाती हैं। बट हाँ, डेफिनेटली जो आपने पॉइंट कही, अधिकांश तौर से हम ज्यादातर बच्चों की मदद कर पाते हैं। वो हमारा उसमें क्या रोल है, हम वो मदद डायरेक्टली नहीं कर रहे, मगर हम एक सूत्रधार बने हुए हैं। हम उन पेशेंट्स को, उन रिश्तेदारों को, उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिली सिस्टम, उनके फ्रेंड्स को
ये एजुकेट कर रहे हैं और उनको वो रास्ता दिखा रहे हैं कि बेटा आप इस रास्ते पर चलो, इस जगह पर जाओ, यहाँ जाओ, इनसे मिलो, इनसे मिलो, ये कागज भरो, ये हमारा सोशल वर्कर आपको हेल्प करेगा, ये पूरी एक टीम है जो आपको हेल्प करेगी, आप सब ये स्टेप्स करो तो अवश्य ही कुछ समय में आपके बच्चे के इलाज के लिए काफी मदद इकट्ठी हो पाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं डॉक्टर रस्तोगी कि अगर अगर एक बच्चे के इलाज में खर्चा समझ लीजिए मैं मान लूं कि 6-8 लाख रुपए हो रहा है, तो 3-4 लाख रुपए तक का अरेंजमेंट आराम से सब तरफ से अगर हम बहुत मेहनत लगाएं और सब तरफ से मदद लगाने की कोशिश करें तो वो किया जा सकता है, तो कि जो कि फैमिली के लिए बहुत बड़ी मदद होती है। करेक्ट, बहुत अच्छी बात कही आपने। और एक और मैं पेशेंट्स को बताता हूँ कि ये मान लो 4 लाख या 8 लाख या 10 लाख रुपए जो भी खर्च होना है वो एक दिन में नहीं खर्च होना है। नहीं, बिल्कुल सही। इट टेक्स टाइम, मंथ्स। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे को कैंसर का शक हुआ है तो आप एक उचित जगह पे जाएं, एक बढ़िया डॉक्टर से मिलें और आप अपने बच्चे को ठीक कराएं। ये बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज मैं देना चाहता हूँ। आज की तारीख में अभी तक जो हमने ये प्रोग्राम शुरू करा है इसका मैसेज यही है कि ये ट्रीटेबल है, आप प्रॉपर डॉक्टर से मिलें और आपको आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, अवश्य ही ठीक हो जाएगा। थोड़ी हिम्मत आप करें, थोड़ी डॉक्टर मदद करेंगे आपकी। और हमारी कम्युनिटी, डॉक्टर कम्युनिटी हमेशा ही मदद करना चाहती है, बस आपको थोड़ा हमें समझने की जरूरत है। डॉक्टर मानस, ये बताइए, जब आपके पास बच्चे पहुंचते हैं तो क्या मतलब डू यू थिंक दे आर रेफर्ड टू यू और दे रीच टू यू इन द बिगिनिंग ऑफ कैंसर और दे कम टू यू क्वाइट लेट? सर मैं नहीं कहूंगा कि सब बच्चे बिगनिंग में ही पहुंचते हैं, कई बच्चे काफी लेट स्टेज में भी पहुंचते हैं। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये कि एक तो परिवारजनों की जहन में और उनकी अपनी थॉट प्रोसेस में, और एक बार कई बार हमारा रेफरल सिस्टम में कुछ कुछ हमारी प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स को हम अगर आइडेंटिफाई करें तो हमें ज्यादा फायदा रहेगा। सबसे पहले तो ये एजुकेशन जरूरी है कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि बच्चे को कैंसर हो सकता है। लोगों को ये पता ही नहीं है, लोग ये कभी सोचते ही नहीं है, एक शॉक में चले जाते हैं और आप एक डिनायल मोड में चले जाते हो कि ये डॉक्टर तो गलत बोल रहा है या ये रिपोर्ट तो गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये सबसे पहली धारणा जो है, इस धारणा को हमें बदलना है, क्योंकि लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि ये तो बीमारी बच्चों में नहीं होती। अब इस कारणवश कई बार बच्चा नहीं ठीक टाइम पे पहुंच पाता। दूसरी बात क्या है, हमारी कंट्री में ना डॉक्टर साहब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अगर मैं आप तो मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं इस बारे में, बट अगर आप अपनी ओपीडी में बैठ के बच्चों की लाइन लगी है और आप सब बच्चों को देख रहे हैं, तो 100 बच्चे अगर आप देख रहे हैं तो उसमें से कैंसर आने का चांस बहुत ही कम होता है ना। अगर आप अपने 100 पेशेंट्स देखेंगे तो द odds that you will have a cancer patient line standing in that queue is very 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 less। तो कभी कभी क्या होता है कि हम ये सोचते हैं भाई टीबी है, टाइफॉइड है, ये सबसे कॉमन बीमारियां हैं जो कि एक बच्चों का डॉक्टर या फिजिशियन देखता है। अब उनमें भी गांठें आती हैं, इन बीमारियों में भी बुखार की परेशानी रहती है, इन बुखार बीमारियों में भी वजन कम हो जाता है। तो कॉमन है, सिम्टम्स आ गए कॉमन दोनों तरीके की बीमारियों में, इन्फेक्शन में और कैंसर में। अब जो चीज ज्यादा कॉमन होगी, जाहिर है डॉक्टर, पेरेंट, परिवारजन, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची सब यही सोचेंगे कि जी बच्चे को तो सबसे कॉमन बीमारियां यही होने का चांस है। और हम उन्हीं कॉमन बीमारियों में कभी कभी उस उलझन में इतना फंस जाते हैं और हम होप करते रहते हैं कि हमारी दवाई 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 25 दिन नहीं, कभी ना कभी जाके काम करेगी। बट आई थिंक हमें अपने मन में कुछ टाइमलाइन सेट करनी पड़ेगी कि भाई अगर मैं एक बच्चे का इलाज कर रहा हूं और उसको इन्फेक्शन है और वो हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक नहीं हुआ, यानी कुछ तो गड़बड़ है और इस बच्चे के डिटेल टेस्ट होने हैं। अगर मेरे पास सारी सुविधा है तो मैं करूं, अगर मेरे पास सुविधा नहीं है तो मैं उसको किसी ऐसे सेंटर में भेजूं जहां उसका टेस्ट करके उसका सही डायग्नोसिस बनाया जा सके। तो जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। बच्चे लेट स्टेज में, कई बच्चे काफी लेट स्टेज में आते हैं, मगर मैं ये भी कहूंगा कि बहुत बच्चे ठीक स्टेज में भी आते हैं।
अगर मैं इसी महीने आपको बात बोलूं तो मैं मतलब इस महीने यानी अगस्त के महीने में बोलूं तो मैंने स्टेज 1 विल्स ट्यूमर, जो किडनी का ट्यूमर है, बच्चों का ट्यूमर है, स्टेज 1 विल्स ट्यूमर के 3 बच्चे देखे। तो यानी वो डॉक्टर जिसने इन बच्चों को पकड़ा और कहा कि भाई तुम्हारे बच्चे के पेट में गांठ है, तुरंत जाइए वहां पर, इसका बच्चे को कैंसर की गांठ है शायद किडनी के अंदर, इसको विल्स ट्यूमर कहते हैं, तो वो स्टेज 1 विल्स ट्यूमर में क्यों हमारे पास पहुंच पाए? इसीलिए पहुंच पाए क्योंकि उनका ठीक समय पर रेफरल हुआ। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 3-3 महीने से इलाज चल रहा है और हर तरीके की दवाई का ट्रायल हो चुका है और बच्चा बेटर नहीं हो रहा, और फिर आपको पता चला कि जी बच्चे को तो ब्लड कैंसर था और कुछ ऐसी दवाइयां चल रही थी जिससे कि वो बीमारी थोड़े समय तक दबी रही और फिर बाद में जब उभर के आई तो बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से आई। बच्चों के अंदर 2 कैंसर काफी कॉमन है, वैसे तो किसी भी किस्म की कैंसर हो सकती है, जैसे तो ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया जिसे कहते हैं, और दूसरा ब्रेन ट्यूमर। जी तो जैसे ल्यूकीमिया अक्सर मिस हो जाता है कि बच्चे का ब्लड कम हुआ और उसको ब्लड चढ़ा दिया, फिर 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद कम हुआ, फिर ब्लड चढ़ा दिया। तो आप कुछ मैसेज ये दीजिए कब पेरेंट्स इस बात के लिए अवेयर हों कि कब उन्हें कुछ और भी हटके सोचना चाहिए, और ब्लड चढ़ाने से पहले कारण जानना बहुत जरूरी है कि ब्लड कम क्यों हुआ। सर, बहुत अच्छा आपने ये सवाल पूछा है मेरे से, ठीक है। उसका रीजन क्या है? हम ब्लड को एक दवाई नहीं मानते। हम सोचते हैं ब्लड ही तो चढ़ाना है, खून की कमी है चढ़ा दिया ब्लड, आपको बच्चों को खून की कमी है चढ़ा दो ब्लड। ब्लड एक दवाई है और वो दवाई देने के लिए हमें 100% श्योर होना है कि हम बच्चे को ये ब्लड क्यों चढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से दूसरी जरूरी दवाई है स्टीरॉयड, कई बीमारियों में इस्तेमाल करती है, मतलब जादू की छड़ी है, कई बीमारियों को गायब कर देती है। कैंसर इज जस्ट वन ऑफ देम। It can be asthma, it can be a arthritis, it can be a connective tissue disorder, it can be some difficult infections, it can be, a myriad of diseases in which steroids work and do wonders. But if we have not looked at the patient carefully, अगर हम उसकी पूरी हिस्ट्री को, उसके एग्जामिनेशन को, उसकी रिपोर्टों को नहीं समझ पाए हैं और स्टीरॉइड्स की दवाई यूज कर रहे हैं, या हम ब्लड चढ़ाते जा रहे हैं और हम कह रहे हैं हाँ भाई ब्लड चढ़ा लो और आपकी खून की कमी तो ठीक हो जाएगी, we can miss blood cancer in these patients. So I think very important, we need to be very judicious. We have to understand कि blood एक तरीके की दवाई है, एक ड्रग है, जिसका इस्तेमाल करने से पहले मुझे 10 बार सोचना है कि मैं ये को क्यों दे रहा हूं, क्या इसका कोई और तरीका है जिसको मैं ये ठीक कर सकूं, या इस बच्चे के को ये खून की जरूरत पड़ रही है तो क्या अंडरलाइन कोई कारण है जिसकी वजह से उसका खून नहीं बन पा रहा, जिसका इलाज ब्लड चढ़ाना नहीं कुछ और है। राइट। सो ये एक बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज है, अगर आपके बच्चे को ब्लड की कमी है और चाहे फादर का भी ब्लड दिया जा रहा है उसे, तो भी वो आप उसे एक फॉरेन पार्टिकल चढ़ा रहे हैं, और आपको एक कारण जानना बेहद जरूरी है कि ये खून की कमी क्यों हो रही है। तो क्या ऐसा खून का लेवल है जिसपे ब्लड चढ़ाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है और टाइम नहीं बचता कि आप कुछ और टेस्ट वगैरह करें? तो सर, जैसे हमारी कंट्री में ना 70% बच्चों को आयरन डेफिशिएंसी। नाउ इफ यू हैव आयरन डेफिशिएंसी, जो कि खाने पीने के माध्यम से ठीक की जा सकती है, या ओरल आयरन के सिरप से ठीक की जा सकती है, या गोली से ठीक की जा सकती है, व्हेन वी आर ट्रीटिंग आयरन डेफिशिएंसी, even if the hemoglobin is 3 or 4 and the patient is on regular touch with you, और आपको पेशेंट की कॉम्प्लायंस पे, पेशेंट के रेगुलर चेकअप पे पूरा विश्वास है, और आपको ये विश्वास है कि भाई कल अगर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं होगी तो माता पिता मेरे पास बच्चे को ले आएंगे, ऐसी स्थिति में बहुत कम हीमोग्लोबिन, बच्चा बिल्कुल स्टेबल हो और कॉम्प्लायंस बहुत अच्छी हो, तो हम अक्सर मुंह से ही दवाई देते हैं। मगर कुछ बच्चों को हीमोग्लोबिन डाउन होने पर दिल के ऊपर प्रभाव आने लग जाता है, उनकी हार्ट की पंपिंग पे प्रभाव आने लग जाता है। ऐसी स्थिति में जो भी लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन हो, आपको ब्लड चढ़ाना है। बच्चे को ऑक्सीजन की जरूरत है, ब्लड चढ़ाना है। हार्ट की पंपिंग पे प्रभाव है, ब्लड चढ़ाना है। बट अगर बच्चा इन सब चीजों में पूर्ण रूप से स्टेबल है और हीमोग्लोबिन मान लीजिए 3-4 भी है, और आपको विश्वास है कि ये मम्मी पापा बहुत दूर नहीं रहते, बच्चे को आपके पास लेकर आएंगे कल भी, परसों भी, तरसों भी, उस स्थिति में हम ओरल आयरन देते हैं। विद इन 1 वीक बच्चे के अंदर सुधार आ जाता है। जब ब्लड कैंसर्स की बात आती है तो उस स्थिति में यूजुअली हम 7 के ऊपर हीमोग्लोबिन मेंटेन करते हैं इलाज के दौरान, ताकि बच्चे को, क्योंकि हमें उसमें कारण तो पता ही है कि ये ब्लड कम क्यों है, और मुंह की दवाई से वो ब्लड बढ़ने नहीं वाला,
तो हम ब्लड चढ़ा देते हैं जब तक कि बच्चों की दवाई यानी कीमोथेरेपी की दवाई चल रही हो. वी गिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ द हीमोग्लोबिन इज लेस देन 7. तो आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया, अगर बच्चा हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, बच्चा ठीक है, तो 3-4 हीमोग्लोबिन तक भी हम वेट कर सकते हैं और प्रॉपर उसके टेस्ट करा सकते हैं और ओरल आयरन से उसको सही कर सकते हैं. तो ये एक बड़ी फॉल्टी प्रैक्टिस है. 7 ग्राम हीमोग्लोबिन पे, 6 पे और 8 पे एकदम से हम ब्लड के लिए जंप कर जाते हैं और ये कारण जानने की कोशिश नहीं करते कि ये ब्लड कम क्यों हुआ. और दूसरा कैंसर जो है डॉक्टर साहब, वो ब्रेन ट्यूमर बच्चों के अंदर काफी कॉमन है. तो वो उसकी क्या साइन है जब पेरेंट्स सस्पेक्ट करें इसको, कोई इमेजिंग करानी चाहिए हेडेक के लिए या कुछ? तो सर मैं आपको यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ब्लड कैंसर्स के सक्सेस रेट में वृद्धि हुई है पिछले 20 साल में इंडिया में, ब्रेन ट्यूमर्स के सक्सेस में उतनी वृद्धि नहीं हुई. अभी भी ब्रेन ट्यूमर्स बहुत लेट डायग्नोसिस है और ब्रेन ट्यूमर्स के बच्चे पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ठीक टाइम पे नहीं पहुंच पाते. इसमें कुछ खोट हमारे सिस्टम का भी है, जो हमारा मेडिकल सिस्टम है उसके अंदर भी खोट है. कैसे है मैं आपको बताता हूँ. ब्रेन ट्यूमर के लक्षण क्या है, पहले वहां से शुरू करते हैं. तो ब्रेन ट्यूमर अक्सर प्रेजेंट करता है बच्चों में सिर दर्द के साथ. जब बच्चों को सिर दर्द होता है, ये सिर दर्द अक्सर होता है सुबह के टाइम. बहुत सारे माता पिता सोचते रहते हैं बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, क्लास नहीं अटेंड करना चाहता. सुबह के टाइम बच्चों को उल्टी भी होती है. क्यों? क्योंकि रात भर सोने के बाद वो ब्रेन में प्रेशर बढ़ जाता है ब्रेन ट्यूमर की गांठ की वजह से, और सुबह के टाइम बच्चों में सर दर्द और उल्टी होती है. तो कई बार माता पिता सोचते हैं कि बच्चा बस स्कूल ना जाने के लिए ये एक्टिंग कर रहा है. इसके अलावा कभी कभी बच्चे की चाल में लड़खड़ाहट आने लग जाती है. बच्चे को अगर हाथ सीधा लेके जाना है तो वो सीधा नहीं लेके जाएगा, उसका हाथ शेक करते हुए जाएगा, वो चीज के ऊपर ठीक से नहीं पकड़ पाएगा, फ्रीक्वेंटली गिर जाएगा, पानी बहुत ज्यादा पिएगा, पेशाब बहुत ज्यादा करेगा. ये कुछ सिम्टम्स हैं ब्रेन ट्यूमर के जो बच्चों में आ सकते हैं. कभी कभी ब्रेन ट्यूमर दौरे के साथ प्रेजेंट कर सकता है कि बच्चे को पहली बार फिट पड़े और आपको पता चले कि बच्चे को ब्रेन ट्यूमर की परेशानी है. सो दीज आर कॉमन सिम्टम्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर एंड ऑब्वियसली ब्रेन ट्यूमर्स आर रेयर एज कंपेयर टू ऑल द अदर प्रॉब्लम्स. सो कई बार ये बच्चों को हम मेनिंजाइटिस, टीबी और इस तरीके की माइग्रेन, हेडेक और फंक्शनल प्रॉब्लम्स, एडोलेसेंट या टीनेजर हो तो हम कहेंगे कि भाई एनोरेक्सिया नर्वोसा है और साइकाट्रिक प्रॉब्लम है, एडजस्टमेंट इश्यूज हैं. बहुत सारे ऐसे लेबल्स लगा देते हैं बच्चों के ऊपर. और मैं यही कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी बच्चे को साइकोलॉजिकल, साइकाट्रिक या इस तरीके का लेबल लगाने से पहले 100% जांच पड़ताल जरूर करें. मैं एक ऐसे इन्फ्लुएंशियल अच्छी फैमिली के बच्चे को जानता हूं जो पिछले 9 महीने से, मतलब उसने पेट के डॉक्टर, छाती के डॉक्टर, दिमाग के डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट, कोई तरीके का डॉक्टर है जो नहीं छोड़ा. और उस बच्चे को क्या क्या, मतलब 14-15 साल का लड़का जिसको हर तरीके की, स्कूल में इसको कोई मार रहा है, ये प्रॉब्लम है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, ये बोलते रहे. बाद में बच्चे के अंदर ब्रेन ट्यूमर निकला जो कि उसका वजन की कमी और उसके चक्कर आने और उसके हेडेक्स और उन सब का कारण था. सो एक तो अवेयरनेस की प्रॉब्लम है. दूसरी प्रॉब्लम जो मैं सिस्टम की आपको डॉक्टर साहब बोल रहा था वो ये था कि अक्सर कई डॉक्टर्स भी और सर्जन्स भी ये सोचते हैं कि ट्यूमर को काट के निकाल दिया ब्रेन से तो वहीं पे मामला खत्म, अब आगे जरूरत नहीं. कई डॉक्टर्स सोचते हैं कि ट्यूमर को काट के निकाल दिया, उसके बाद सिकाई या रेडिएशन कर दी तो वही मामला खत्म, अब आगे जरूरत नहीं है. पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट का इन्वॉल्वमेंट हर ब्रेन ट्यूमर के केस में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कई पीडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर्स को बाद में कीमोथेरेपी देनी पड़ती है. तो ये सिस्टम की प्रॉब्लम और ये हेल्थ केयर अवेयरनेस की प्रॉब्लम, अगर दोनों चीजें मिल जाएं तो ब्रेन ट्यूमर के सक्सेस में भी काफी वृद्धि हो सकेगी. एक आपने बताया जो ब्रेन ट्यूमर में सुबह के समय सिर दर्द होगा और प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी, उल्टी बच्चे की दूर जाके पड़ेगी, बच्चा लड़खड़ा के चल सकता है और कई बार आपको बच्चा कंप्लेन करेगा मुझे 2-2 दिखाई दे रहे हैं. और बिल्कुल, ये भी बहुत सही. जब आप देखते हैं कि उन्हें 2-2 दिखाई दे रहे हैं और कई बार आप उसको नजरअंदाज कर देते हैं कि ये ऐसे ही कह रहा है और
क्योंकि आप अपने बच्चे को सुबह शाम देखते हैं, उसकी आंख में थोड़ा महंगापन आता भी तो कई बार आप मिस कर देते हैं। महंगापन भी बहुत जरूरी है, एक वन ऑफ द साइंस ऑफ अ सीरियस प्रॉब्लम इन द ब्रेन। बिल्कुल। डॉक्टर मानस, एक बात बताइए, बड़ों में जब कैंसर की बात करते हैं तो जो मैंने सुना है, कहते हैं सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है, तंबाकू खाने से कैंसर हो जाता है, और जला फूका खाने से कैंसर हो जाता है। तो बच्चों का तो ऐसा एक्सपोजर ही नहीं होता, कोई तंबाकू तो पीता बच्चा देखा नहीं मैंने, खाता है सिगरेट पीता हो, फिर उन्हें कैंसर क्यों हो जाता डॉक्टर साहब बस आप ये सोचिए कि एक बैड लक है, है? अच्छा। it is just bad luck. Okay, so most of the childhood cancers there is no identified cause. हम कभी कारण नहीं ढूंढ पाते कि ये बच्चे को कैंसर क्यों हुआ। स्मॉल परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में कुछ ऐसे सिंड्रोम्स होते हैं जिनमें कैंसर कॉमन है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम एक ऐसी तरीके की बीमारी है जिसमें मेंटल रिटार्डेशन और बहुत सारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट होता है। आपने बच्चों को देखा होगा डाउन सिंड्रोम के, इनको ब्लड कैंसर बाकी बच्चों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कॉमन है। कुछ ऐसी बीमारी है खून की, जैसे कि फैंकोनी एनीमिया, कुछ ब्रेन की बीमारी है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। सो ऐसी कुछ बीमारियां जेनेटिक तौर से फैमिलीज में चलती हैं जिनके अंदर कैंसर होने का चांस बच्चों में ज्यादा है, मगर अधिकांश बच्चों में कोई कारण हम नहीं ढूंढ पाते। ना अल्कोहल है, ना स्मोकिंग है, जैसे आपने कहा ना पान मसाला है, कोई कारण नहीं है, बट फिर भी बच्चों को कैंसर होता है। ये क्यों होता है डॉक्टर साहब? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे सेल्स नॉर्मली डिवाइड करते हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6। बॉडी की एक मशीनरी है जो कि 1 से 100 होने के लिए रोकती है कि भाई ठीक से डिवाइड करो, अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड मत करो। जब वो मैकेनिज्म, सेल के डिवीजन का मैकेनिज्म, वो मशीनरी, बॉडी की वो मशीनरी जो सेल के डिवीजन को कंट्रोल करती है, वो गड़बड़ा जाए, तब उस जगह पर कैंसर होता है। अब ये कैंसर, अगर बोन मैरो की मशीनरी खराब हुई, जहां खून बनता है, तो ब्लड कैंसर होगा। ब्रेन के सेल में गड़बड़ हुई तो ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उसको क्लासिफाई करते हैं और कारण भी यही समझाते हैं पेरेंट्स को। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कभी एक कारण नहीं होता। कहते हैं कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ गई है, कह रहे हैं कि हमारी जो सिंपल साधारण जीवन था वो कम होता जा रहा है। बट विश्वास मानिए, आई लिव्ड इन कंट्री वेयर द पॉल्यूशन लेवल वाज वेरी वेरी लो। आई विजिटेड कंट्रीज वेयर जहाँ पे हवा को बोतल में डाल के बेचा जाता था कि ये हवा लेके जाइए, इतनी प्योर हवा है। तो वहां पर भी बच्चों को कैंसर है। तो सिर्फ एनवायरनमेंट पे ब्लेम करना ठीक नहीं होगा। एनवायरनमेंट जरूर हमारे आजकल सब्जियां कहते हैं कि नाले के पानी में उगती हैं, पॉल्यूशन बहुत है, पानी में गंदगी है, इंसेक्टिसाइड्स हैं। तो मैं मान रहा हूं कि इनका कंट्रीब्यूशन ऑन्कोजेनेसिस में या कैंसर पैदा करने में है, बट पूर्ण रूप से इन पे ब्लेम नहीं डाला जा सकता। राइट। शायद यही वजह है तंबाकू सिगरेट वगैरह के इफेक्ट बच्चों में नहीं है, तो उनके कैंसर का टाइप डिफरेंट है। जैसे बड़े जनों में मुंह का कैंसर बड़ा कॉमन है, या फेफड़ों का कैंसर है, या ये बच्चों में नहीं होते। बड़ी आंत का कैंसर है, कोलन का कैंसर है, प्रोस्टेट का कैंसर है, ये बच्चों में नहीं होता। वो शायद एजिंग की वजह से उनकी जो सेल्स हैं वो कुछ एबनॉर्मली डिवाइड करने लगते हैं। So, do children have better survival rates than adult with cancer? डेफिनेटली सर, ये तो सबसे बड़ा जो चाइल्डहुड कैंसर, बच्चों का कैंसर, तो एक तरीके का उदाहरण है दुनिया के लिए। क्योंकि लोग कहते थे कि कैंसर से जीत नहीं मिलती, और बच्चों के कैंसर ने दुनिया को सिखाया कि नहीं, ये जीत मिल सकती है। सो इट इज डेफिनेटली, मोस्ट ऑफ द चाइल्डहुड कैंसर्स आर क्योरेबल। अगर अर्ली स्टेज पे पकड़े जाएं तो बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। तो एडल्ट के कैंसर्स अक्सर ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट होते हैं, और दूसरी चीज, एडल्ट्स ट्रीटमेंट को उतना अच्छा नहीं झेल पाते, उनको साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। बच्चे साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट वो साइड इफेक्ट से फटाफट रिकवर कर जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत बढ़िया होती है। तो बच्चों के अंदर कैंसर का सक्सेस काफी बेहतर है एडल्ट्स के मुकाबले में। और बड़ों में कोमॉर्बिडिटी भी है, किसी को बिल्कुल डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, गठिया है, कुछ है, तो उसके साथ उसकी जो बिल्कुल प्रॉब्लम है वो उनकी 5 और बीमारियों का इलाज करना पड़ता है कैंसर की बीमारी के साथ। वो दवाई एक ईंट छुए 10 गिर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों में तो बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल। What are most common treatment options for children cancer?
सो सर, अगर मैं आपको कहूं कि भाई बच्चों का कैंसर कैसे इलाज कर किया जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें दवाई, कीमोथेरेपी, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के कैंसर ब्लड कैंसर है और ब्लड कैंसर का पूरा इलाज दवाई से किया जाता है। तो कीमोथेरेपी इज द मोस्ट कॉमन मोडालिटी यूज्ड। और कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी ऐसी दवाई है जो कैंसर को मारती है, कैंसर के सेल को मारती है। लोग कीमोथेरेपी के नाम से बहुत डरते हैं। इट इज जस्ट लाइक एनी अदर मेडिसिन। जैसे आप कोई दवाई लगवाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, वैसे ही वो ड्रिप में आपके दवाई दी जाती है या मुंह से खाने को दी जाती है। लोग सोचते हैं कीमोथेरेपी से बहुत दर्द होता है, बहुत पेनफुल होती है। तो कीमोथेरेपी बिल्कुल पेनफुल नहीं होती, वो ड्रिप की तरह दी जाती है, उससे कोई आपको ऐसे दवाई दर्द वगैरह नहीं होता। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोडालिटी टू ट्रीट। इसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट मोडालिटी सर्जरी। कई बीमारियों में, गांठों में स्पेशली, जो जैसे कि किडनी की गांठ हो गई, न्यूरोब्लास्टोमा की गांठ हो गई, ब्रेन ट्यूमर की गांठ हो गई, इनमें सर्जरी का भी बहुत अत्यंत आवश्यक रोल है। एंड सर्जरी प्लस कीमोथेरेपी इज डन फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। थर्ड मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इज रेडिएशन थेरेपी। सो रेडिएशन थेरेपी, सिकाई का जो इलाज होता है, हम बच्चों में अवॉइड करना चाहते हैं। क्यों अवॉइड करना चाहते हैं? क्योंकि रेडिएशन के थोड़े लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। मगर जहां जान बचानी है और कोई और रास्ता नहीं है, वहां रेडिएशन करना ही करना। जहां पे कैंसर का सक्सेस 5, 10, 15% बढ़ रहा हो सिकाई के साथ, वहां पे फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी के बच्चे की जान बचाएं। साइड इफेक्ट्स कई बच्चों को होंगे, कई बच्चों को नहीं भी होते, है ना। सो वी यूज रेडिएशन कंजर्वेटिवली विद ग्रेट थॉट प्रोसेस, बट दीज आर द 3 मेन मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट। इसके अलावा जो एक पूरा बूम आया है ऑन्कोलॉजी फील्ड में, वो है टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का। टारगेटेड थेरेपी क्या है? कि आप समझ लीजिए कि कोई एक डिफेक्ट है जो कि कैंसर सेल को बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। अब हम कीमोथेरेपी में क्या करते हैं कि आप दवाई देते हैं और वो कैंसर सेल का जो बढ़ रहा है उसको पूरे को मार देता है, ठीक है, कैंसर सेल्स को खत्म करता जाता है। जब वो कैंसर सेल को मारता है तो वो एक मशीन की गन की तरह है, वो सब सेल्स को मार रहा है, बुरे भी मर रहे हैं, अच्छे भी मरते हैं। टारगेटेड थेरेपी में क्या होता है कि आप जो टारगेट है, ये ट्रिगर है आपके सेल को बढ़ने का जेनेटिक तौर से। तो एक जैसे कि एक CML नाम से बीमारी है, उसमें BCR-ABL नाम से एक म्यूटेशन होती है। वो म्यूटेशन ब्लड कैंसर के सेल्स को बनाती है। तो आपने एक गोली बना दी, एक मैजिक बुलेट बना दी, जो कि उस BCR-ABL को जाके अटक जाती है, चिपक जाती है और कहती है भाई मैं तुम्हें अब आगे सेल्स बनाने नहीं दूंगी। सो दिस इज टारगेटेड थेरेपी। ये भी कैंसर में बहुत बड़े तौर से आ रही है। इम्यूनोथेरेपी क्या है? इम्यूनोथेरेपी ऐसी दवाइयां हैं जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को कहती हैं भाई जाग जा और कैंसर के सेल को मार। सो आपको सशक्त बनाती है कि आपका इम्यून सिस्टम ही कैंसर के सेल को मार पाए। सो दिस इज कॉल्ड इम्यूनोथेरेपी। फिर एक चीज होती है जिसे कहते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट एक ऐसा तरीके का बॉडी का चेंज किया जाता है सिस्टम, जिसके अंदर आपके ब्लड प्रोडक्शन वाले सेल्स और इम्यूनिटी बनाने वाले सेल्स को किसी डोनर के थ्रू बदला जाए, और इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयां या बहुत स्ट्रॉन्ग सिकाई दी जाती है जो कैंसर को मारे, और फिर नया इम्यून सिस्टम जो डोनर का इम्यून सिस्टम है वो भी कैंसर को मारने में मदद करता है। तो ये कुछ तरीके हैं जो हम अपनाते हैं बच्चों में या बड़ों में कैंसर को खत्म करने के लिए। जी, स्टेम सेल थेरेपी का भी कोई रोल है कैंसर के लिए? सो बिल्कुल है, बिल्कुल। सो स्टेम सेल थेरेपी या बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिसको लोग बोलते हैं, ये एक तरीके का यही इलाज है जो कि ब्लड कैंसर्स वगैरह में, कुछ लिम्फोमास वगैरह में, मल्टीपल माइलोमा में, कुछ ऐसे इलाज बीमारियों के अंदर, न्यूरोब्लास्टोमा में, जो हेल्प करता है कैंसर को खत्म करने के लिए। तो इसके कई तरीके के ट्रांसप्लांट होते हैं। एक ट्रांसप्लांट होता है ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट, जिसमें अपने ही सेल्स को हम निकाल के संभाल लेते हैं, फिर बहुत बड़ी कीमोथेरेपी देते हैं, वो आपकी बोन मैरो को भी खत्म करती है, कैंसर को भी खत्म करती है, और जो स्टेम सेल आपने संभाल के बैंक में रखे होते हैं उनको बाद में चढ़ा देते हैं ताकि आपकी बोन मैरो काम करने लग जाए। ये तो हो गया ऑटोलॉगस। एलोजेनिक स्टेम सेल क्या होता है कि भाई आपका भाई या बहन है, वो आपके साथ मैच है, या आपके मम्मी पापा हैं वो आपके साथ हाफ मैच है, या कोई अनरिलेटेड डोनर है रजिस्ट्री में जो फुल मैच है। तो ऐसे
लोगों के स्टेम सेल का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे को, मरीज को दी जाती है पूरी प्रॉपर कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन, वो उनके कैंसर को और उनकी बीमारी को खत्म करते हैं, और फिर दूसरे इंसान का स्टेम सेल डाला जाता है जो कि आपके बॉडी के अंदर जाके अच्छा खून बनाना शुरू करे और आपके इम्यून सिस्टम को सशक्त करे कि वो कैंसर को खत्म करे। तो ट्रांसप्लांट का भी रोल है, बट बहुत कॉमनली नहीं है कि भाई हर बच्चे को जरूरत पड़ेगा। अगर ब्लड कैंसर के बच्चे माने, जो कि कॉमन ब्लड कैंसर ALL होता है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, सो 5-10% बच्चों को ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर बच्चे सिर्फ कीमोथेरेपी के इलाज से ही ठीक हो जाते हैं। एक और ब्लड कैंसर है AML, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। वो थोड़ी बीमारी डिफिकल्ट होती है इलाज के लिए एज कम्पेयर टू ALL। उसमें कई बच्चों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, मतलब the chances of needing a bone marrow transplant is higher as compared to ALL की बीमारी। Right. So, what is the best way to talk to children about their cancer diagnosis? When it is known you have diagnosed it as cancer, how to disclose it to child? So थोड़ा मुश्किल काम है ये, Dr. Rastogi, और and we always struggle with that. You can never have one mantra that fits for every child. हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा अलग है, हर बच्चे का सोशल सर्कमस्टांस अलग है, हर बच्चे के माँ बाप का बीमारी के साथ कोप करने का तरीका अलग है। सो कई पेरेंट्स बहुत अपफ्रंट होते हैं। विदेश में जहाँ मैं रहता था, पहले ट्रेनिंग कर रहा था, वहाँ तो बहुत ही अपफ्रंट हैं। पीपल डायग्नोज एंड disclose very openly. They talk to their 4-year-old, 5-year-old, 6-year-old child and tell them on first week that you have cancer, you have blood cancer, we will give you treatment, you will be cured, and the treatment will be for 2.5 years. You will have to come to hospital, आपको regular आना पड़ेगा। वहाँ बहुत open system है बात करने का, और मैं मानता हूँ कि शुरू में झटका लगता है, मगर कोपिंग स्ट्रैटेजी अच्छी होती है, बच्चे समझ जाते हैं। इंडिया में थोड़ा सा ये तरीका अलग है। इंडिया में हम बच्चों को ना शुरू से, पेरेंट्स, और आप भी पेरेंट है, मैं भी पेरेंट हूँ, वी प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन टू मच। हम उन्हें एक कोजी एनवायरनमेंट में रखते हैं और उनको हमेशा दुनिया की कठिनाइयों से बचाने की कोशिश करते हैं ना। तो यहाँ पर अक्सर पेरेंट्स बच्चों को डिस्क्लोज नहीं करते और आपको भी मना करते हैं कि आप बच्चे को नहीं बोलेंगे। बट धीरे धीरे विद पेरेंटल कंसेंट हम अक्सर बच्चों को, पहले जैसे कि भाई दवाई लगेगी, फिर धीरे धीरे कीमोथेरेपी लगेगी, फिर ऐसे ऐसे वर्ड्स इंट्रोड्यूस करते हैं कि ल्यूकीमिया है, फिर वो डिस्चार्ज समरी पढ़ते हैं। तो धीरे धीरे इन अ स्टेप वाइज फैशन हम बच्चों को डिस्क्लोज करते हैं। एक बार में यहाँ पर वो ट्रेंड नहीं है, और मैं कहता हूँ कि एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं है फैमिलीज में कि हम बच्चों से डायरेक्टली बहुत अपफ्रंट होकर बात करें। So anything you think a parent of childhood cancer patient should know or keep in mind? First thing that you need to keep in mind is that there is very good chance that your child will be cured. अधिकांश बच्चे ठीक हो जाएंगे, अधिकांश बच्चे लंबी उम्र जिएंगे और बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स के साथ नहीं जिएंगे। अधिकांश बच्चे शादी कर पाएंगे, अपनी जॉब्स कर पाएंगे, they'll be able to lead a normal life, they'll be a part of the community. So that is the most important thing. The other important thing I want to tell them is that this treatment is not going to be easy. There are going to be challenges, there are going to be difficult days, there are going to be days when you'll be crying, when you need the support of your family, friends, the medical team. So it is not going to be an easy journey. And then the third thing that I want to tell them is that there is support. बहुत सारी मदद है आपके लिए, बहुत सारे लोग हैं जो आपको हेल्प करना चाहते हैं, जो आपके इस मुश्किल समय में आएंगे, और भगवान रास्ता खोलेगा आपके लिए। I am a God fearing person and I believe in God, and I trust that there is some supernatural power who is protecting us, who is looking after us, and there will be some help that will come your way. Even if you feel today that, oh, my life has ended and my child has got this and this is the end of the road, it is not. You will find another way, you'll find a way to walk on this difficult path, and we'll be there to support you.
सर ये बताइए आप, व्हाट इज द चांसेस ऑफ चाइल्ड बीइंग फर्टाइल आफ्टर गेटिंग ट्रीटमेंट? So, Dr. फैमिली Rastogi, लाइफ नॉर्मल so होगी? it depends from cancer to cancer. So there are certain kind of tumors where the chemotherapy is so strong or the treatment is so intense or the patient has to undergo a transplant, like some of the bone tumors, some of the brain tumors, where the chemotherapy, जैसे हम कुछ दवाइयाँ होती हैं alkylating agents वगैरह, इनकी डोजेस बहुत ज्यादा देनी पड़ती हैं, तो इनमें फर्टिलिटी इशू आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, अगर कोई फर्टाइल मतलब बड़ा लड़का है, तो हम उसकी सीमेन बैंकिंग कर सकते हैं, सीमेन को क्रायो प्रिजर्व कर सकते हैं। अब बच्चों की भी, गर्ल्स की भी हम कुछ ओवेरियन क्रायो प्रिजर्वेशन या उनके भी हम गैमीट्स को संभाल सकते हैं फॉर फ्यूचर। बट अधिकांश बीमारियों में ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आती। ब्लड कैंसर में भी मैं कहता हूं कि अगर आपका ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है, सिंपल कीमोथेरेपी दी जा रही है, तो अक्सर हमें ये परेशानी फेस नहीं करनी पड़ती। बट यस, इट कैन बी अ प्रॉब्लम, बट अगेन वी गिव देम होप कि भाई फर्टिलिटी की फील्ड तो कितनी जबरदस्त बढ़ गई है आजकल। वी हैव सो मेनी डिफरेंट वेज टू हेल्प आउट parents who do not have children, and I'm sure that in the coming years that that medical science is going to be able to help every couple to have a baby. राइट, वंडरफुल। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो बच्चे हैं जिन्हें कैंसर हो गया है और जिनका ट्रीटमेंट हो गया है, ठीक हो गए हैं, उनके उनकी फैमिली में एक बड़ा फियर हो जाता है। जैसे एक बच्चा है जिसका आपने इलाज किया था, अब उसका दूसरा भाई है, जब भी उसको बुखार होता है, जब भी कुछ होता है तो पेरेंट्स डर जाते हैं। व्हाट आर द चांसेस ऑफ द अनदर चाइल्ड बी so so डेवलपिंग कैंसर? so कम है चांस, बहुत कम है। the odds are very very less, देयर इज very नो very less. कोरिलेशन, ये एक बच्चे को हो गया तो दूसरे बच्चे को भी होएगा ही। बहुत कम चांस है। हम उनको रीअश्योर करते हैं कि आप बिल्कुल ना घबराएं और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जिएं। कि ऑड्स, सी अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिकली थोड़ा चांस इन दोज फैमिलीज इज हायर एज कंपेयर टू दी फैमिलीज वेयर देयर इज नो चाइल्ड विद कैंसर, बट दैट ऑड्स आर आल्सो वेरी वेरी लेस। जिन फैमिलीज में जेनेटिक बीमारियां हैं और वो जेनेटिक तौर से अपने पूरी फैमिली में उस चीज को स्प्रेड कर रहे हैं, उन फैमिलीज में चांस हाई होता है। और वो फैमिली की आजकल पूर्ण रूप से जेनेटिक काउंसलिंग वगैरह अवेलेबल है, और हम उन्हें अवेयर बना सकते हैं कि भाई आपके अगले बच्चे को, जैसे कि रेटिनोब्लास्टोमा एक बीमारी है, आंख का ट्यूमर होता है, आंख के अंदर शुरू होता है और आंख बाहर आ जाती है। और आंख में कैट्स आई रिफ्लेक्स कहते हैं कि जो आपकी प्यूपिल होता है, प्यूपिल में सफेद रंग दिखता है। आप फ्लैश फोटोग्राफी करेंगे तो आपको आंख के अंदर एक सफेद वो दिखेगा, दूसरी आंख लाल दिखेगी, बट इस आंख के अंदर सफेद दिखेगा। तो रेटिनोब्लास्टोमा फैमिलीज में अगले बच्चे को भी होने का चांस काफी हाई रहता है। तो ये हम उनकी गाइडेंस देते हैं, उन बच्चों की स्क्रीनिंग करते हैं और जल्दी ही उस ट्यूमर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। राइट, थैंक यू डॉक्टर मानस, आपने बहुत अच्छा बच्चों के कैंसर के बारे में बताया, और you have given us very good insight about the cancer in children, and it is going to benefit all of our attendees and the people, those who will watch it later on. And Thank you, sir. if a child is in the right hand, the prognosis is very good. Then my last question to you is, what does it mean by 80% survival, 95% survival? What are the long-term survival? So जब हम 80% सर्वाइवल की बात करते हैं, हम 5 year सर्वाइवल की बात करते हैं कैंसर में। We talk about 5 years. That in 5 years time from now, the chance that your child is going to be alive is somewhere around 80%. Okay. Now, why don't we talk after that? Why don't we talk of 10 years, 20 years, 30 years? Because you see, we feel that most of the children who have crossed the 5 years mark, जिन्होंने 5 साल निकाल लिए, अब उनका कैंसर वापस नहीं आएगा। So अधिकांश केसेस में यही होता है कि बच्चों का कैंसर एक बार 5 साल निकाल ले तो उसके बाद वो कैंसर वापस नहीं आता। तो हमारा स्टैटिस्टिकली हम 5 साल की बात करते हैं, उसके बाद इन बच्चों को लॉन्ग टर्म फॉलोअप क्लिनिक में डाल देते हैं, जिसमें ये बच्चे हमारे पास साल में एक बार आते हैं दिखाने के लिए, और हम उनके अंदर
बीमारी या उसके इलाज के कोई लंबे समय तक दुष्प्रभाव हैं या नहीं, क्या हमारे इलाज ने या बीमारी ने कोई लंबे समय के लिए साइड इफेक्ट छोड़ा है, उसके लिए हम स्क्रीन करते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, लिपिड प्रॉब्लम्स हो गई, फैट की प्रॉब्लम हो गई, या किसी बच्चे को एडजस्टमेंट इशू है अपने स्कूल में, कॉलेज में, कहीं ऐसी तरीके की जो साइको सोशल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए फोकस करते हैं, या हार्मोन प्रॉब्लम्स हैं, एंडोक्राइन इश्यूज हैं, स्पेशली ब्रेन ट्यूमर के बच्चों में, ये सब चीजें जो है हम उनको तब देखते हैं। तो हम यूजुअली सर्वाइवल 5 इयर्स तक के लिए फोकस करते हैं। वंडरफुल। एंड दिस इज नॉट ए कॉन्टेजियस डिसीज, एक बच्चे से दूसरे बच्चे को नहीं होता है, और ये बच्चे अपने स्कूल में नॉर्मली जा सकते हैं और दूसरे बच्चों के साथ खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बिल्कुल वेरी मच डॉक्टर मानस, आपने इतना टाइम निकाला और हमारे अटेंडीज को सब समझाया और बताया। Thank you, sir. It is a pleasure and an honor to be with you. And especially in this month of childhood cancer awareness, I think there cannot be a better time than September, जब हम childhood cancer awareness की बात कर रहे हैं और इस मैसेज को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं. So thank you for that. Thank you, Manas. Deepmanji, do you have some question which has not been answered as yet? Dr. Manas, I have only 2 questions from the audience. One is, do the children have a chance of getting skin cancer? सो इंडिया में स्किन कैंसर का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इंडिया में मेलानिन पिगमेंट हमारे स्किन के अंदर है। बाहर के देशों में जिन लोगों में मेलानिन की कमी होती है उनको अक्सर कहते हैं भाई बीच पे जाने का बहुत शौक होता है सबको, और बाहर धूप में आउटडोर्स बहुत रहते हैं, आउटडोर एक्टिविटी बहुत करते हैं, तो उनको हमेशा बोला जाता है कि भाई आप स्किन में अपना ये लगाइए, सनस्क्रीन लगाइए, चश्मा पहनिए, टोपी पहनिए, ये सारे उनको प्रिकॉशंस दिए जाते हैं। इंडिया में स्किन कैंसर्स काफी कम। And so the second question is there a age which the parents need to be watch out, like how early, or is there any specific benchmark? So it's a good question, but there are different types of cancers and different age groups. सो यंग बच्चों में अक्सर ब्लड कैंसर्स की प्रॉब्लम ज्यादा आती हैं, थोड़े बड़े बच्चों के अंदर ब्रेन ट्यूमर्स, बोन ट्यूमर्स, ये सारी प्रॉब्लम ज्यादा आती हैं। सो नॉर्मली कॉमनली ज्यादातर कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं वो अक्सर 2 साल से लेके 6 साल के बीच में होते हैं, कॉमनेस्ट, क्योंकि ज्यादातर ट्यूमर्स इसी में हमें बच्चों के अंदर पता चलते हैं। बट हाँ, कोई भी एज ऐसी नहीं है जिसके अंदर कैंसर की बीमारी नहीं पकड़ी जा सकती, तो दिस कैन बी प्रेजेंट एट एनी एज ग्रुप। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि देखिए, पेरेंट्स को कैंसर के लिए वॉच आउट नहीं करना। पेरेंट्स को क्या वॉच आउट करना है कि अगर आपका बच्चा किसी बीमारी से सफर कर रहा है और हफ्ता 2 हफ्ता हो गया और उसकी बीमारी का हम जड़ नहीं पकड़ पा रहे, या वो बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा, बुखार है जो ठीक नहीं हो रहा, कोई गांठ आपने नोटिस करी है जो ठीक नहीं हो रही, कोई आपकी हड्डियों में दर्द है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रहा, ब्रेन ट्यूमर्स के मैंने आपको सिम्टम्स बताए, आई ट्यूमर का मैंने आपको सिम्टम बताया, अगर ये सब कुछ बच्चों के अंदर हो रहा है तो आप प्लीज अपने पीडियाट्रिशियन से बात करें, उनसे बोलें कि डॉक्टर साहब 2 हफ्ते से हमारा बच्चा ठीक नहीं है, 15 दिन हो गए ठीक नहीं है, और टीबी टाइफॉइड का कोई 100% प्रूफ नहीं है, तो क्या हमें और कुछ संगीन बीमारी के लिए, बड़ी बीमारी के लिए जांच तो नहीं करनी? बस इतना ही अवेयरनेस होना चाहिए। आई डोंट थिंक कि एवरी फीवर, एवरी स्मॉल प्रॉब्लम यू हैव टू पैनिक. Childhood cancer is very rare, and we just need to be mindful that it can happen, and if the problem is not getting corrected, then we need to address it more proactively. Thank you, Dr. Manas. I think very important session today, and more you have emphasizing to spread the awareness so that we save a lot of time. So, Dr. Anuj, as you are saying, you may not be the parent of a child with cancer. Awareness may not be a big priority. The day before my child was diagnosed, I wasn't a cancer parent. So awareness, funding, cures. So I think we have discussed in and around the topic today. A lot of awareness is required, and I can only say thank you at this moment to Dr. Manas and Dr. Anu sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you.